دیگر خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں. آپ کو بتائیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے آصف علی زرداری پر قتل کے الزام کے کیس میں سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 2 مارچ کی تاریخ مقرر کر دی. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے خلاف تھانہ اپارہ میں درج مقدمے کا چالان جوڈیشل مجسٹریٹ کو پیش کر دیا گیا. فرد جرم عائد کرنے کے لیے 2 مارچ کی تاریخ مقرر کی گئی ہے. عدالت نے ایس ایچ او تھانہ اپارہ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست واپس کر دی ہے. عدالت کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ مقدمے کا چالان پیش کر دیا گیا ہے، 2 مارچ کو فرد جرم عائد کریں گے. عدالت نے کہا کہ اندراج مقدمہ کی درخواست سننے کا اختیار سیشن عدالت کا ہے، اس لیے یہ واپس کر رہے ہیں. شیخ رشید نے استدعا کی کہ فرد جرم کے لیے 15 مارچ کی تاریخ رکھ دیں، ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے جانا ہے. جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ فرد جرم کے لیے اتنی لمبی تاریخ نہیں دے سکتے، ٹرائل شروع ہوگا تو پھر دیکھ لیں گے. کیس کی سماعت 2 مارچ تک ملتوی کر دی گئی. کیمرہ مین محمد شایان کے ساتھ خرم ملک، سچ نیوز، اسلام آباد. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے وکلاء نے ممنوعہ فنڈنگ کیس فارن ایکسچینج ایکٹ کے تحت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی کاپی عدالت میں جمع کرا دی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت کیس کی سماعت 25 فروری تک ملتوی کر دی گئی. بینکنگ کورٹ کی جج رخشندہ شاہین نے سماعت کی. سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے وکیل نعیم حیدر پنجوتھا نے کاپی جمع کروائی. ہائی کورٹ نے بینکنگ کورٹ کو عمران خان کی عبوری ضمانت پر 22 فروری تک فیصلے سے روک رکھا ہے. ہائی کورٹ نے عمران خان کی فریش میڈیکل رپورٹ 22 فروری کو طلب کر رکھی ہے. اور وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف آشیانہ اقبال ریفرنس میں بڑی پیش رفت. وعدہ معاف گواہ بیان سے منحرف ہو گیا. عدالت نے ملزم ندیم ضیاء پیرزادہ اور کامران کیانی کی عبوری ضمانت میں 4 مارچ تک کی توسیع کر دی ہے. احتساب عدالت نمبر 5 کے جج ساجد علی آوان نے وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر کے خلاف آشیانہ اقبال ریفرنس کی سماعت کی. نیب کے وعدہ معاف گواہ کرنل ریٹائرڈ عارف مجید نے شہباز شریف کو کلین چٹ دے دی. وعدہ معاف گواہ اسرار سعید نے کہا کہ شہباز شریف کا اس مقدمے میں کوئی کردار نہیں ہے. خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے موجودہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اب صرف سپریم کورٹ ہی پاکستان کو بچا سکتی ہے. ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو ختم کرو. آصف زرداری چوروں اور کرپٹوں کا بادشاہ ہے. مریم صاحبہ، آصف زرداری، بلاول بھٹو، شہباز شریف، یہ ان ڈاکوؤں، چوروں اور لٹیروں کے جہاز استعمال کرتے ہیں جنہوں نے اس قوم کا خون چوسا ہے. کیونکہ عام جہاز میں جائیں گے تو پیچھے سے آواز لگے گی چور ہوئے چور. جا ہی نہیں سکتے، جا ہی نہیں سکتے. اور جس تیزی سے یہ میرے چالان کاٹ رہے ہیں، نظر آتا ہے کہ مجھے سسرال جانا پڑے گا. آدھا سامان اس لیے میں چھوڑ آیا ہوں. میں نے 7.5 سال قید کاٹی ہے کلاشن کوف میں. ختم نبوت میں سال 2 سال کاٹی ہے. کورٹ مارشل کاٹا ہے، کوڑوں میں سے اللہ نے بچا لیا. میں نے کڑیاں والا قتل کیس کاٹا ہے، بھویا اصل کاٹا ہے. دکھ صرف اس بات کا ہے کہ ان کا خیال شاید یہ شیخ رشید کو جانتے نہیں ہیں. پہلے میرا خیال تھا اب میں ریٹائر ہو جاؤں، اب میں چھوڑوں، ایک نالا لئی بناؤں اور کام ختم کروں. اب میں ان کو ختم کروں گا، ان کو ختم کر کے دم لوں گا. مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ نواز شریف میرے لیڈر ہیں، پارٹی سے کوئی اختلاف نہیں. جو نئی لیڈرشپ آئے اسے کام کا موقع دیا جائے. 35 سال سے نون لیگ کے ساتھ ہوں، یہاں سے گھر ہی جاؤں گا. نیب کو ختم کیا جائے ورنہ حکومت نہیں چلے گی. جاوید اقبال کو جواب ان باتوں کا دینا پڑے گا. مجھے ان کا نام لیتے ہوئے کوئی اچھا محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب تک اس آدمی کا احتساب نہیں ہوگا، جب نیب کے حقائق عوام کے سامنے نہیں آئیں گے تو ملک کے معاملات نہیں چلیں گے. ایک ادارہ جس کی بنیاد ہی خراب ہے، آپ وہاں فرشتوں کو بٹھا دیں وہ کام غلط ہی کریں گے. میں 35 سال سے نون لیگ کے ساتھ ہوں، یہ میری جماعت ہے اور یہاں سے میں گھر ہی جاؤں گا. میں نے کبھی سیاست میں نہ کسی عامر کو قبول کیا ہے نہ کسی اور کو قبول کیا. میرے لیڈر نواز شریف صاحب، میرے کوئی معاملات مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہیں.
मेरी कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है। मैंने ज़िंदगी में कभी पार्टी का ओहदा नहीं रखा था, 31 साल तक बगैर ओहदे के था। मुझे 2019 में अपोजिशन में ये जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी, मैंने निभाई है। इमरान खान का बुध से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। आगाज लाहौर से होगा। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कौम ने खौफ के बुत तोड़ दिए। आइन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि मुद्दत मुकम्मल होते ही निगरान हुकूमत गैर आइनी हो जाए। गिरफ्तारियों का खौफ डरा नहीं सकता, इमरान खान डट गए। चेयरमैन पीटीआई का बुध 22 फरवरी से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। आगाज लाहौर से होगा। दायरे कार मुल्क भर में फैलेगा। बुध से वेंसडे को अपनी जेल भरो तहरीक हमने शुरू करना है लाहौर से, और हम फिर बड़े बड़े शहरों के अंदर हम जेल भरने की अपनी तहरीक शुरू करेंगे, जेल भरेंगे। हम क्या बताना की कोशिश कर रहे हैं, हम सबसे पहले तो अपनी कौम को ये कहना चाहते हैं कि अब खौफ के बुत को तोड़ दो। इमरान खान का कहना था आइन में लिखा है 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए। मुकर्ररा मुद्दत के बाद निगरान हुकूमतें गैर आइनी हो जाएंगी। खतरनाक बात है कि इलेक्शन कमिश्नर ही इंतखाबात कराने से माजूरी जाहिर कर रहा है। इलेक्शन 90 दिन में होनी है, यानी जब हमने अपनी असेंबलियां पंजाब की और पख्तूनख्वा की, जब हमने अपनी असेंबलियां डिसॉल्व की, तो हमने इस नॉलेज से की कि पाकिस्तान का जो आइन है वो वाजे कर देता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। 91 दिन का मतलब ये कि जो भी गवर्नमेंट है वो गैर आइन हो। साबिक वजीर आजम ने पीटीएम इत्तेहाद को आड़े हाथों लिया। बोले हुक्मरान इलेक्शन नहीं ऑक्शन से आगे बैठे हैं, तभी ये इंतखाबात में जाने से डरते हैं। पीटीआई अवाम की ताकत से इनको शिकस्त दे देगी। भाग रही है, डरती है इलेक्शन लड़ते हुए। ये इलेक्शन से गवर्नमेंट में नहीं बैठे, ऑक्शन से बैठे हुए हैं। ये डरे हुए हैं इलेक्शन होगा ये हार जाएंगे। लिहाजा इसका मतलब ये है कि आइन की खिलाफ वर्जी हो जाए लेकिन इलेक्शन ना। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कर्ज लेकर मईशत चलाना मसले का हल नहीं। IMF ने पीटीआई हुकूमत को भी कीमतें बढ़ाने का कहा, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। मौजूदा हुक्मरानों ने महंगाई में होशरुबा इजाफा करके अवाम की कमर तोड़ दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद ने कहा है कि आइंदा चंद रोज में बड़ी गिरफ्तारियां होते देखेंगे। इमरान खान आर्टिकल 62 और 63 से बचना चाह रहे हैं। इमरान खान को तोशाखाना का हिसाब देना पड़ेगा। ये मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी ना आए। मुल्क दिवालिया होने जा रहा था, हमने बचाया। PDM की 13 जमातों ने बरवक्त फैसले किए। फर्द वाहिद के फैसले कभी नहीं चलते। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की ऑडियो लीक का मामला। वज़ीर दाखिला की इजाज़त के बाद FIA ने तहकीकात का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। FIA हुकाम के मुताबिक ऑडियोज़ की फोरेंसिक करवाने का फैसला कर लिया गया है। फोरेंसिक के लिए ऑडियोज़ को लाहौर भिजवाया जाएगा। फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद तहकीकात अगले मरहले में दाखिल होंगी। फोरेंसिक रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को फराहम की जाएगी। असल होने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नवाज शरीफ ने ऑडियो लीक्स का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेजने का मुतालबा कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म का कहना है कि चौधरी परवेज़ इलाही के सामने आने वाली ऑडियो लीक्स इंतहाई तशवीशनाक हैं। आला अदालत के जज से मुतालिक इससे ज़्यादा संगीन बातें और क्या हो सकती हैं। परवेज़ इलाही साहब की जो बातें हैं, जो कल ऑडियो लीक्स उनकी आई हैं, ये तो बहुत संगीन है। जो उन्होंने मुज़ाहिर नकवी के बारे में जो बातें की हैं, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा संगीन बातें किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में और क्या हो सकती है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पाकिस्तानी कौम नोट कर ले मेरी ये बात कि इन्हीं किरदारों की वजह से, मुज़ाहिर अली नकवी जैसे किरदारों की वजह से आज पाकिस्तान इस मुकाम पे पहुंचा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन लोगों की वजह से आज पाकिस्तान जो है ना वो लुढ़क रहा है, सर के बल गिर रहा है और संभलने का नाम नहीं लेता। तो मैं तो समझता हूँ जी कि ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत संगीन है और इसका हर तरीके से भरपूर नोटिस लिया जाना चाहिए। इधर कप्तान का जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। तहरीक में हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ी भी पुरजोश हैं। कहते हैं खान की आवाज़ पर जेल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मजीद बताते हैं नबील नकवी। नबील, ज़रा बताइएगा क्या तैयारियां हैं।
हाँ जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर ज़मान पार्क में इस वक्त कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। बिलखसूस गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब की जानिब से 22 फरवरी से जेल बरो तहरीक का जो ऐलान किया गया, उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि जो कारकुनान हैं वो यहाँ काफ़ी पुरजोश हैं। दूर दराज से यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपने कप्तान के साथ इजहार यकजहती करने के लिए आए। कारकुनान की बड़ी तादाद मेरे साथ ही मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा, कहाँ से आप लोग आए और जेल बरो तहरीक में किस तरीके से हिस्सा लेने के लिए आप लोग तैयार हैं? सबसे पहले मैं सच न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँ कि आप हमारे व्यूज़ ले रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और ख़ूबसूरत वादी हुंजा गुजाल से मेरा ताल्लुक़ है। सूबाई सीनियर नायब सदर ट्रेडर्स विंग गिलगित बल्तिस्तान। आप गिलगित बल्तिस्तान से आए, जेल यहाँ भरेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान जाके भरेंगे? सर चूँकि मुर्शिद अंदर सो रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि मुर्शिद आराम से सोए। पहली बात यह है कि पकड़े हैं ना, हम ज़मान पार्क के मेन पे इस वक्त खड़े हैं। मैं 4 दिन से सोया भी नहीं हूँ। अब ज़ाहिर बात है, हम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेते किसी पार्टी के अंदर या किसी भी जगह, तो उसको निभाना भी है ना सर। हम खड़े हैं। खालिद खुर्शीद की इसमें इज्जत की बात है, गिलगित बल्तिस्तान की। बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी और भी कारकुन जो है मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करें। सर बताइएगा, आप कहाँ से आए और खान साहब के ऐलान के बाद क्या जोश, क्या जज्बा है? सर हम लाहौर से, हमारा ताल्लुक़ है। NA 119 की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। पहले हमने ड्यूटियाँ डिवाइड की हुई थी कि 8-8 घंटे, कोई 12 से लेके 8 बजे तक, वो 8 से लेके सुबह तक। अब हम 24 आवर्स हमारी पूरी टीम इधर है, क्योंकि ये ना ड्रामेबाजी करते हैं। रात को जब लोगों का रश होता है ना, तो पुलिस की 10-12 गाड़ियाँ, 2-3 प्रिजन वैन्स लेके ना चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे। इमरान खान साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आने वाले कल में भी उनके साथ। हाँ जी बिल्कुल, आपने ख्यालात सुने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के। यहाँ पे अपने कप्तान की, अपने लीडर की हिफाजत के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं अब यहाँ इस खैमा, यहाँ पे जो खैमा बस्ती कायम है ज़मान पार्क के बाहर, 24 घंटे मौजूद है। और अगर आज सियासी एक्टिविटीज़ की बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज भी इमरान खान साहब के साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप की मुलाकात हो। आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के आम इंतखाबात के लिए मशावरत मुकम्मल कर ली है। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पीर को सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी से ऐवान सदर में मुलाकात करेंगे। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सज्जाद काज़मी हैं, उनसे जानते हैं तफसीलात। क्या तफसील है सज्जाद? जी बिल्कुल ऐसे ही है। सदर मुमलिकत की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा गया था, उसकी मुलाकात का कहा गया था मंडे को। उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मशवरत की है और कमीशन के रकीब ने उनको ये मशवरा दिया कि वो मुलाकात भी करें और अपना जो आईनी और कानूनी जवाब है वो भी उनके सामने रखें। और उसके बाद अब ये फैसला किया गया है कि मंडे को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो है और ईवान सदर जाएंगे और वहाँ पर जाकर मुलाकात करेंगे। और इस मामले पर राय बताते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है पंजाब और KC के तमीज़ से मुतालिक जो इंतखाबात हैं उस पर अपना आईनी और कानूनी पहलू जो है उस पर जो है उनको बताएंगे। और साथ ही ये बताया जा रहा है कि जो सदर मुमलिकत ने खत लिखा था उनको, उनका जवाब भी उन्होंने तैयार कर लिया है। और साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब और KP के तमीज़ से मुतालिक जो है उनको बताएंगे कि हमें फंड की तफसीलात से मुतालिक जो ने कहा था कि हमारे फंड भी हैं वो भी बताएंगे क्या। और साथ साथ सिक्योरिटी जो है और उस नकाफी होने की जो जवाब जो है वो भी बयान करेंगे, क्योंकि उसकी कबल ने उनको खत लिखा था कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। इस तरह पुलिस की तरफ से खत लिखा गया था कि हमारे पास फंड नहीं है। तो ये दोनों जो पहलू है वो सामने रखा जाएगा और ये मुलाकात जो है वो ईवान सदर में सुबह 11 बजे एक्सपेक्टेड है। ठीक, बहुत शुक्रिया सज्जाद। और ब्रांडेड अशिया इस्तेमाल करने वालों पर भी महंगाई का कारीवार। यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जनों ब्रांडेड अशिया के दाम बढ़ गए, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। क्या क्या महंगा हुआ, जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर्स हो गए महंगे फिर अब की बार। एकदम से दर्जनों ब्रांडेड अशिया की कीमतें बढ़ाकर आवाम को महंगाई का नया टीका लगा दिया गया। शैम्पू, साबुन, सर्फ, केचप, नूडल समेत दर्जनों अशिया महंगी कर दी गई। बिजलियां गिराते नोटिफिकेशन के मुताबिक साबुन 30 रुपए और हैंड वॉश की कीमत में 21 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। 1 किलो सर्फ 59 रुपए, टॉयलेट रोल 10 रुपए और टिश्यू पेपर का डब्बा 43 रुपए तक महंगा हो गया है। महंगाई ने बच्चों को भी ना बख्शा, बच्चों का खुश्क दूध 140 रुपए तक महंगा कर दिया गया है। केचप और नूडल्स तो महंगी हुई ही हैं, अब बच्चों के डायपर्स खरीदना भी आसान नहीं रहा। कीमतें 350 तक बढ़ा दी गई हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक बॉडी वॉश 400 मिलीग्राम 42 रुपए, चिली गार्लिक सॉस 50 रुपए महंगा हो गया, जिसके बाद यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी करने वाले शहरियों ने सर पकड़ लिया।
और लाहौरियों को पेट्रोल महंगा होने का पहला झटका लग गया। सूबाई दारुल हुकूमत में इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10 से 15% तक इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल महंगा होते ही लाहौर से दूसरे शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट भी महंगी हो गई। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ा दिए गए। नए किरायों के मुताबिक लाहौर से रावलपिंडी का किराया 2450 से बढ़ाकर 2550 रुपये कर दिया गया। लाहौर से पेशावर का किराया 3000 से बढ़ाकर 3200 रुपये कर दिया गया। लाहौर से फैसलाबाद तक 1130 रुपये की बजाय 1180 हो गया, जबकि सरगोदा का किराए में भी 50 रुपये का इजाफा किया गया। खबरें और भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। पेशावर में मुर्गी को भी पर लग गए। मुर्गी कीमतें रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं। शहरियों के लिए मुर्गी का गोश्त खाना भी मुश्किल होता जा रहा है। मजीद जानते हैं अवैस महमूद से। अवैस महमूद, क्या सूरत हाल है मुर्गी के गोश्त की यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखें पूरे मुल्क की तरह पेशावर में भी जो महंगाई है वो दिन ब दिन आसमान को छूते हुए दिखाई दे रही है। हर चीज़ की जो कीमतें हैं वो भी आसमान को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिन ब दिन जो है वो कीमतें जो है वो बुलंद सतह पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। महंगाई जो है काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, जिससे शहरी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगर मुर्गी की कीमतों के हवाले से बताता चलूँ तो मुर्गी की कीमतें भी जो है वो दिन ब दिन जो है उसमें 10 से 20 रुपए जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। अगर आज की कीमत बताता चलूँ तो 440 रुपए जो है वो किलो फी मुर्गी जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, जिससे जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। महंगाई के हाथों जो है वो शहरी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत से यही इल्तिजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि खुदारा जो कीमतें हैं उस पर कंट्रोल किया जाए ताकि उनको रिलीफ मिल सके। मुर्गी जो है दिन ब दिन उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि वजूहात यही बताई जा रही है कि जो मुर्गी है वो पंजाब से लाई जाती है, उस पर किराया जो है वो होता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे आती है तो रेट फिक्स किया जाता है। तो काफ़ी जो है वो महंगाई जो है उसके हाथों शहरी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कीमतें जो है वो 440 तक जो है वो जा पहुंची हैं मुर्गी की कीमत। इसी तरह जो दूसरी अशिया खुदनोश की कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरी जो है वो काफ़ी आजिज आ चुके हैं महंगाई के हाथों, और हुकूमत से ये शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। उधर कराची में महंगाई का असर खवातीन के बनाव सिंगार पर भी पड़ने लगा है। कॉस्मेटिक्स की बढ़ती हुई कीमतों ने दुकानों पर आई खवातीन को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। किरण फातिमा की रिपोर्ट। सुर्खी पाउडर हो या लाली, सब ही महंगी कर डाली। बनाव सिंगार करने वाली खवातीन के लिए अब मेकअप करना हुआ मुश्किल। मिनी बजट के पेश होने के बाद जहां दीगर अशिया महंगी हुई, तो वहीं मेकअप का महंगा सामान भी खवातीन के सिंगार में रुकावटें डालने लगा। मेकअप की शौकीन खवातीन कॉस्मेटिक्स की कीमतों की भरती उड़ान पर दिल बर्दाश्ता दिखाई दी। 200-300 की चीज़ें मिलती थी, अब वो 500-600 पे चली गई हैं। हमारे लिए लेना मुश्किल हो गया है, तो अब हम थोड़ा सोच के लेते हैं कि अब लेना है या नहीं लेना। महंगा जब भी आप 15 दिन में आए, हफ्ते में आए, महंगा होता ही रहता है। तो इसकी तो कोई वो नहीं है कि जब भी आए आप हर चीज़ में आपको जो है वो बल्कि डबल ट्रिपल इस तरह से रेट बढ़ते रहते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रेट होते जा रहे हैं। बंदा पहले ले लेता था कुछ चीज़ इतने की थी, तो वो 500-600 रुपये बढ़ा दिए गए। आजकल हर चीज़ महंगी हो रही है, तो मतलब मेकअप से रिलेटेड भी और बाकी सारी चीज़ें भी महंगी हो रही हैं। मतलब इतना होना चाहिए कि बंदा अफोर्ड कर ले, पर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता जा रहा है दिन ब दिन। बनाव सिंगार करने वाली खवातीन का रश उड़ान भरती कीमतों के बाद अब दुकानों पर ना होने के बराबर रह गया है। कैमरामैन शहरोज खान के साथ किरण फातिमा, सच टीवी, कराची। सब्जी और फ्रूट की बढ़ती हुई कीमतों ने महंगाई के सताए शहरियों को मजीद परेशान कर रखा है। मंडी माफिया की मनमानियां जारी हैं। उधर इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है। तफसीलात जानते हैं शिराज खान से। शिराज, क्या तफसील आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त हम इस्लामाबाद के एक मॉडल बाज़ार में मौजूद हैं। पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने के साथ ही जो सब्ज़ी और फ्रूट की कीमतें हैं उनमें भी इजाफा देखने में आया है। इधर जब हमने गाहकों से बात की तो गाहकों का कहना है कि सब्ज़ी के रेट इस तरह बढ़ चुके हैं कि हम सब्ज़ी ख़रीदने से भी कासिर हैं। और अगर दुकानदारों की बात की जाए, जब दुकानदारों से बात की तो दुकानदारों का ये शिकवा करना है कि पीछे से जो है वो सब्ज़ी इनको महंगे दामों मिल रही है, इसलिए ये महंगे दामों सब्ज़ी और फ्रूट फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं। और अगर बात की जाए सब्ज़ी की तो सब्ज़ी में जो है आलू जो है आज का जो रेट है आलू का वो 47 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। और अगर प्याज की बात की जाए तो प्याज जो है वो 182 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। और उसके बाद टमाटर जो है टमाटर 47 से 48 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसके बाद अगर लहसुन की बात की जाए तो लहसुन 388 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। और गोभी वगैरह की बात की जाए तो गोभी जो फूल गोभी है वो
وہ بھی 50 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। रेट में जो है वो काफ़ी तजाद है। तो इस हवाले से देखा जाए तो शहरी जो है वो बहुत शुक्रिया शिराज तफसीलन आगाह करने के लिए। टैक्सेस भरने की वजह से पैम्पर्स के रेट भी बढ़ गए हैं। वालदैन पैम्पर्स महंगे होने की वजह से परेशान दिखाई देते हैं। पैम्पर्स खरीदना शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। मजीद बता रहे रानातीक क्या कहते हैं वालदैन? जी बिल्कुल, महंगाई ने इस वक्त तकरीबन पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है। महंगाई का जो जिन है बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रहा। इसी तरह अगर बात की जाए पैम्पर्स की तो नए टैक्सेस जो है वो पैम्परों पर भी लग गए हैं। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे शॉपकीपर मौजूद हैं जिनका पैम्पर्स ही का ही काम है। मैं उनसे जानता हूँ उनका क्या कहना है, नए टैक्सेस की वजह से कितना के पैम्परों का रेट बढ़ा है और पहले कितना के था और अब सेल पोजीशन क्या है। जी सर, पहले पैम्पर का रेट बहुत ज़्यादा था। अब नए टैक्स की वजह से हर पैम्पर हर ब्रांड में 200-300 रुपया इंक्रीज़ हुआ है। तो मार्केट की कंडीशन आप खुद देख लें, दूर दूर तक कस्टमर का नामो निशान नहीं है। जी, जैसा कि आपने पैम्पर सेल करने वाले की बात सुनी कि इस वक्त हालात वाक़यात इंतहा से ज़्यादा ख़राब हैं। महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस वक्त पैम्पर्स के जो नए रेट्स आ गए हैं, पहले ही सेल बहुत कम थी लेकिन अब जो सेल है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि जो नए टैक्सेस लगाए हैं इनको वापस लिया जाए ताकि हम भी सुकून का सांस लें और गाहक भी आसानी के साथ पैम्पर खरीद कर आसानी के साथ अपने बहुत शुक्रिया रानातीक तफसीलन आगाह करने के लिए। हुकूमत की गुर्बत की चक्की में पिसी अवाम पर बमबारी जारी है। गैस, बिजली, पेट्रोल के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलने वाली सस्ती अशिया की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। तेल और घी की कीमत में 130% का इजाफा कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे हैदराबाद के डिविजनल ब्यूरो चीफ कलीमुल्लाह से। जी कलीमुल्लाह, यहाँ क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, महंगाई की सताई अवाम पर हुकूमत की जानब से रोज़ एक नया बम गिराया जा रहा है और पेट्रोल, गैस, बिजली के बाद अब यूटिलिटी स्टोर पर मिलने वाली सस्ती अशिया भी महंगी कर दी गई हैं और घी, तेल जैसी बुनियादी अशिया पर 100 रुपये से ज़ायद का इजाफा कर दिया गया है। और एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। जी जनाब, आप क्या खरीदने हैं और क्या बताएंगे? जी यहाँ पे हम आटा वगैरह लेने के लिए आटा, घी, चीनी उसके हिसाब से, लेकिन जो बाहर से मिल रहा था वो तो हमारे पहुँच से ही बाहर है, हम तो वो ले ही नहीं सक रहे। लेकिन यूटिलिटी स्टोर पे भी जो चीज़ हमें आटा 400 का मिल रहा था अब 650 का मिल रहा है। घी जो मिल रहा था 300 रुपये का वो भी 375 रुपये का हो गया। चीनी भी 90 रुपये की हो गई है। तो हमारी आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर चली गई ये चीज़। ये शहरियों ने मुतालबा किया है कि स्टोर गरीब आवाम के लिए उम्मीद का आखिरी सहारा है, लिहाजा इधर कीमतों में इजाफा। ठीक, कलीमुल्लाह तफसीलन आगाह करने के लिए शुक्रिया। मिनी बजट में आयद किए गए नए टैक्सेस ने मोबाइल दुकानदारों की परेशानी में भी इजाफा कर दिया। दुकानदारों की हुकूमत से अपील है कि नए टैक्स ख़त्म किए जाएँ और हमें कारोबार करने दिया जाए। तफसील ब्यूरो चीफ आसिफ रजा आशिक से जानते हैं। आसिफ, यहाँ क्या कहते हैं ताजर? जी बिल्कुल, बात करते चलते हैं बजट के हवाले से। बजट सालाना हो या मिनी बजट हो, जब बजट का नाम आता है तो आवाम की जो तबीयत है वो ख़राब हो जाती है। अब मिनी बजट आया, इसके हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवाबशा की मोबाइल मार्केट में जो दुकानदार हैं उनसे जानते हैं कि जो ये मिनी बजट में टैक्स आयद किए गए हैं उससे उनके कारोबार पर कितना फ़र्क पड़ा है। जी कितना फ़र्क पड़ा है? जी पहले ही महंगाई इतनी है, पहले ही कारोबार नहीं था, अब दूसरा बजट आ चुका है। इसकी वजह से 17 से 25% तक मोबाइल महंगे हो चुके हैं। जैसे ही कस्टमर हमारे पास आते हैं तो उन्हें रेट बताया जाता है, वो वैसे चले जाते हैं। बजट में टैक्स ख़त्म किया जाए। मोबाइल जो है ज़रूरत ज़िंदगी का अहम जुज़ है, इससे एक दूसरे से जो राब्ते हैं बाहर रहते हैं। जब ये टैक्स लगाया गया है तो मोबाइल की जो ख़रीद है उसमें जो है फ़र्क आएगा और राब्ते जो हैं आवाम के। आसिफ शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। मिनी बजट में लगने वाले टैक्सेस से यूटिलिटी स्टोर्स पर भी मुतादिद अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। शहरियों ने बढ़ती हुई कीमतों को मुस्तरद कर दिया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ खानेवाल राना ताहिर से। राना ताहिर, खानेवाल के शहरी क्या कहते हैं? जी ऐसा ही है। अभी ये जो मिनी बजट आया है, टैक्सेस लगे हैं जिसकी वजह से महंगाई का एक सैलाब उमड़ आया है। बाज़ारों में हर शय महंगी हो चुकी है। नोटिफिकेशन हुकूमत की जानिब से जारी हो गया है। इसके साथ साथ जो शहरी हैं वो भी खासे परेशान दिखाई देते हैं और ख़वातीन भी मुश्किलात का शिकार हैं। ख़वातीन से इसी वाले से बात करेंगे। आप बताएं, टैक्सेस लगे, मिनी बजट आया, अशिया खुर्दोनोश महंगी हुई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई तो आगे ही बहुत आगे जा रही थी, अब मज़ीद टैक्सेस लग गए हैं तो आवाम के लिए तो ख़रीदारी बहुत मुश्किल हो गई है। आगे रमज़ान भी आ रहा है, पहले यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाया करेंगी। अब ये है कि टैक्सेस लगने के बाद यहाँ भी आवाम को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। आप बताएं, मुतालबा क्या करना चाहेंगे? मुतालबा ये करना चाहिए कम अज़ कम साल में एक दफ़ा कीमतें बढ़नी चाहिए और वो भी थोड़ी। हम सख्त नापसंद कर रहे हैं इस टैक्सेस को और इन चीज़ों को। हम बाहर से खामोश हैं लेकिन हमारा अंदर रो रहा है।
बेसकून है, कोई सुकून नहीं, कोई चीज़ खरीद के बंदा खा भी नहीं सकता, रोज़े की तरह हालत में हम सारा दिन रहते हैं। जी, ख़वातीन की आपने बात सुनी, इनका यही कहना है कि ये जो टैक्सेस लगे हैं, अशिया खुर्दनोश महंगी हुई हैं, आए दिन कीमतें बढ़ जाती हैं। ज़िमनी एक साल में दो तीन दफ़ा बजट पेश किया जाता है। इस चीज़ को बंद होना चाहिए, अशिया खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों को इत्तेदाल पे लाना चाहिए। लगने वाले एक टैक्सेस के बाद ये जो कीमतें बढ़ी हैं इनको बहुत शुक्रिया राना ताहिर तफसील आगाह करने के लिए। हुकूमत ने महंगाई में पिसी आवाम को एक और बड़ा झटका दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने रहीम यार खान के शहरियों की भी चीखें निकलवा दी हैं। हसन रहमानी की रिपोर्ट देखिए। बेलगाम महंगाई गरीब अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके हुकूमत की जानब से एक और झटका। महंगाई की चक्की में पिसी रहीम यार खान की अवाम हुकूमत पर पट पड़ी। सारा दिन रिक्शा चलाते हैं, पेट्रोल भी खर्च करते हैं, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, घी महंगा है, इतना घी महंगा किया हुआ है कि बस हमारी बहुत परेशानी होगी। हुकूमत ने पेट्रोल 22 पे 20 पैसे जबकि डीजल 17 रुपए 20 पैसे महंगा कर दिया। शहरी कहते हैं महंगाई के दौर में पहले ही घर का किचन चलाना मुश्किल है, अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से गरीब आदमी अपने बच्चों को मोटरसाइकिल या रिक्शे पर स्कूल भेज नहीं सकता। रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, पेट्रोल महंगा होता है। गरीब आवाम की ज़िंदगी में बड़ा अजाब बन गया ये पेट्रोल की महंगाई, और बड़ा प्रॉब्लम्स हैं। आटा नहीं मिल रहा, दाल चीनी घी हर चीज़ महंगी हो गई। रहीम यार खान के शहरियों ने हुकूमत वक्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को फिलफौर वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, सच न्यूज़ के साथ इस बुलेटिन से इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए sach tv.pk और रहिए सच के साथ।